Welcome to all of you. After completion of 2 chapters in geography, 1 chapter in economics, now 1 chapter in, I am very hopeful, I am not confirmed, or you can say that recalling immediately, but I am hopeful that I completed 1 chapter in political science as well. Now it's glad to inform you that today I am in front of you for French Revolution. For French Revolution. Today we are here to discuss about French Revolution. We have to study over the French Revolution, that what do we mean by French Revolution, what things we have to study in the French Revolution as well as. Yes, definitely, I was just checking the previous thing. 1 chapter, what is democracy, why democracy, completed, okay, from political science. 1 chapter from a story of village Palampur, 2, and the 2 chapter from geography, India, size and location and physical features of India. So I am very hopeful that 2, 3, 4, this one is the 5th chapter, which is none other than French Revolution, which we can know in Hindi as the फ्रांसीसी क्रांति. आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. What was the impact of the French Revolution, what happened in the French Revolution, or what are the content we have to study in your course subject regarding French Revolution, we will discuss. So welcome to all of you. Actually, like भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप जवाब दे देते होंगे 1857 ईस्वी. Just like that, whenever we have to start or whenever we have to discuss about the French Revolution, we have to memorize a particular date of 14th July 1789. 1789, 14 July. Actually, on that day, there was an unique condition, full with fear, डर का माहौल, and the reason was very clear, that the emperor of that region ordered the military or their defense staff to enter into the city, and the rumor was spread by some unknown people that the staff had the order to start shooting. एक ऐसा भय का माहौल था कि लोगों को लग रहा था कि भाई लगता है उन्हें गोली चलाने की मतलब आज वो गोली चलेगी, आज हम लोग मारे जाएंगे, सेना घुसेगी, सेना हम लोगों को मार. एंड डेफिनेटली थिंक दैट इन करेंट सिनेरियो ऑल्सो, अगर इस तरह की सूचना आप एक कल्पना करें हमारे परिदृश्य में कि ऐसा लगे कि भाई पुलिस वगैरह काफ़ी आ रही है और आज वो गोली फायरिंग भी कर सकती है, तो एक भय का माहौल तो रहता है. बिकॉज इन द टाउन हॉल एट दैट मोमेंट 7,000 मेल एंड फीमेल were gathered, and they thought, actually ultimately they thought that we have to do something, we have to do something, and this one was the reason to do something. एक कुछ करना है, तो एक जो चीज़ होती है या एक ऐसी परिस्थिति कि जब 7,000 men and women gathered in the front of town hall and decided to form a people's militia. मतलब एक जैसे आप पीपल्स मिलिटिया को आप समझ सकते हैं कि जन सेना, कि एक जन सेना का गठन कर. एंड
for the establishment of people's militia. What they did some mistakes also. उनके द्वारा भी उपद्रव जारी था. वो कई सैन्य प्रतिष्ठानों में भी घुसे जबरदस्ती हथियार के लिए, चूंकि if you are hoping to establish a military group, then definitely you need some weapons and all. So they were also doing such kind of nonsense thing, and due to that only they thought that when the army will come, then definitely they will start shooting on them. That one was the fact, because troops are entering into the city, and due to getting the information for the entry of the troops into the city, hundreds of people moved toward the eastern part of the Paris city. And what they did कि भाई उन्होंने मतलब वहाँ से जगह को खाली किया, पेरिस के पूर्व में चल गए, वहाँ के जेल को भी उन लोगों ने फोर्सली तोड़ डाला. क्या क्या फोर्सली तोड़ डाला? क्यों तोड़ा? हथियार को कब्जे में लेने के लिए. इट मीन्स व्हाट? दैट वाज द सिचुएशन इन विच द पीपल, the citizen of that country, due to that, actually they were also completely annoyed. They were also completely annoyed with that situation, whatever was present in that time, and they wanted to oppose whatever the orders given by the emperor or king of the concerned country, and due to that they also just tried to make a parallel forces to oppose them. और कोई कारण नहीं था, विरोध करने के लिए, नहीं मानने के लिए, उनको डराने के लिए, उनसे ऊब जाने के कारण वह एक समानांतर सेना का गठन करना चाह रहे थे, और जिसके कारण कि वह पेरिस के पूर्व चले गए, जहाँ बास्तिल किला जो फोर्ट था उसको तोड़ा गया, और इस उम्मीद में तोड़ा गया कि वहाँ से हमें काफ़ी हथियार मिले. अब जेल टूटा, प्रिजन टूटा. अनफॉर्चुनेटली 7 लोग वहाँ थे, वहाँ कई बहुत बड़ी संख्या में कैदी नहीं थे, तो जो भी 7 मिले उनको छुड़वा लिया गया. एंड एक्चुअली इन दैट टाइम दैट प्रिजन वॉज हैविंग, और द प्रिजन वॉज लाइक उसको काफ़ी घृणा का केंद्र मतलब उसको माना जाता था, उसको काफ़ी खराब नज़रिए से देखा जाता था. क्यों? चूँकि उसको माना जाता था कि भाई राजा जो अपनी शक्ति का है दुरुपयोग करके और हमारे नागरिकों को, हमारे देश की जनता को इसी प्रिजन में रखते हैं, तो उसको लोग उस प्रिजन को काफ़ी घृणा की नज़र से देखते थे. और इसी के कारण अब जैसे हमारे यहाँ काला पानी है ना, तो सम्मान तो है नहीं. अब आज प्राचीन स्थापत्य कला का नमूना है, लेकिन पहले क्या बात थी कि भाई अगर कोई व्यक्ति जिसको सज़ा मिलती थी और कड़ी सज़ा मिलती थी तो उसको काला पानी भेज दिया जाता था कि जाओ अंडमान में रहोगे, ना कहीं आदमी दिखेगा ना कुछ. पूरा द्वीप समूह है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो जेल है. तो उसके कारण उन्होंने बास्तिल के जो प्रिजन था उसको तोड़कर गिरा. अब उसके बाद जो ये कंडीशन स्टार्ट हुआ, विच स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789, वो परिस्थितियाँ चलते रहे, संघर्ष होता रहा, पक्ष और विपक्ष में लगातार विरोध होते रहा. एंड आप जानते नहीं होंगे एट दैट टाइम द ऑपोजिशन फॉर द किंग बड़ा ही विचित्र परिस्थिति था. बड़ी ही छोटी छोटी चीज़ों से वहाँ की जनता परेशान हो जा रही थी. एंड यू गॉट सरप्राइज्ड व्हेन यू हियर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. मतलब जो पावरोटी की कीमतें राजा के द्वारा बढ़ाई गई उसके कारण भी विरोध हो रहा था. अब आप इस चीज़ को समझिए
कि जब आप किताब में पढ़ेंगे या आपको कोई बताएगा देन यू विल फील ऑकवर्ड, क्या बेवकूफ़ थे, पावरोटी के दाम के कारण बढ़ने के कारण राजा का भी विरोध हो रहा था, ये भी एक मुद्दा में था। नहीं, इसके दूसरे पक्ष को देखिए कि इट मीन्स द प्राइस ऑफ द ब्रेड। अगर लोगों के पब्लिक के विरोध का कारण बनता है, इसका मतलब एक चीज़ स्पष्ट है, वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर, दैट ब्रेड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द पीपल ऑफ द नेशन। इसका मतलब कि उस देश में जनता के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, मतलब एक काफ़ी बड़ी राशि जो है वो खर्च होती होगी ब्रेड पर, मतलब ब्रेड बहुत डिमांडिंग आइटम होगा। एंड ड्यू टू दैट when they got a news regarding hike in price of bread, they start opposing the decision of the king. And ultimately the bottom line fact कि भाई चीज़ें यह छोटी थी, लेकिन यह एक चेन का काम किया। यह क्या किया? चेन का काम किया। चेन मतलब कड़ी का काम किया। ये जो छोटे छोटे असंतोष थे, छोटी छोटी गलतियाँ जो प्रशासन के द्वारा, जो राज्य के द्वारा ली जा रही थी, उसने जनता के मन के विद्रोह को, विरोध को बढ़ाने का काम किया। और नतीजा क्या हुआ कि बहुतायत संख्या में जनता जो है उनके निर्णयों से इत्तेफाक नहीं रखने लगी और विरोध का स्वरूप बढ़ा और बाद में फ्रांसीसी क्रांति हुई। और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहा जाता है कि पूरे यूरोप की अगर किसी क्रांति ने दिशा और दशा बदली तो वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था। सो बॉटम लाइन फैक्ट, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन didn't affect only the people of France, but the impact of this revolution affected complete European country। आने वाले समय में अगली कक्षा में जब हम इसको विस्तार से समझेंगे, लाइक फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, कि क्या था नहीं था, विद्रोह हुआ, चूँकि अभी तो समराइज्ड फॉर्म में बात हो रही है, तो आप एक चीज़ को समझेंगे कि यह जो फ्रांसीसी क्रांति का एक तरह से सिनॉप्सिस का चर्चा हो रहा है और जिसका परिणति क्या था तुमको याद रखना है। अब मेरा एक लाइन का समरी समझो। पब्लिक परेशान है, बहुत अच्छा से समझना। एक राष्ट्र जहां की जनता अपने शासक से पूर्णतः परेशान, उसकी नीति से परेशान, उसके निर्णय से परेशान, पूरी तरह से परेशान। जहां प्रशासन की गलती, पावरोटी के कीमत, बढ़ी हुई कीमत को भी गलती में माना गया, इसका मतलब है कि मैं यह बताना चाह रहा हूं कि वह सत्ता, जो सत्ता वहां काबिज थी, जनता उस सत्ता को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकना चाहती थी। दे वॉन्ट टू चेंज द गवर्नेंस, द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ड्यू टू दैट दे स्टार्टेड अपोजिंग। और पावरोटी के विरोध, निर्णयों का विरोध करते 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 उन्होंने वह क्रांति की जिस क्रांति का अंत वहाँ के राजा की हत्या के साथ होता है। मतलब आप इस चीज़ को समझें, राजा की बर्बरता को समझें कि जनता उससे कितनी परेशान हो गई थी कि सिर्फ उसको पद से हटाना ही जनता का उद्देश्य नहीं था, अपितु लास्टली एट द एंड ऑफ द रिवॉल्यूशन जो वहाँ के किंग थे उनको फांसी की सजा दी गई और तब जाकर समस्या का अंत। Then definitely if such kind of conditions arised in 1750, 60, 70 time period, then definitely it's our duty to know about the incident, situation, conditions, what arised, what happened in that time. So tomorrow we will start the discussion over the situation which was ended by the killing of the emperor of the Greece. Thank you.